on this. Like Shield Art is a non-profit initiative where we group of friends and artists we have been working for some time. So, and we try to promote young artists mostly, encouraging some dialogues among them. And I won't take much time. And this is a new series we have started during this lockdown, where we want a conversation between artists, young artists, and a curator who understand his practice or have been working with him. So this is the second session. We have been calling it Art Explore. This session as an Insta Live, and today we are live. And I won't take much time because this is a short period we have where we need to do all the discussions and all. So I'll just briefly introduce. I think everyone mostly are familiar with the practice of the artist Murari Jha in some way or the other, and also knows Advait also. So Murari Jha is a Delhi-based visual and performance artist, and he will be in conversation with Advait Singh, who is also an independent curator and theorist based out of Delhi. So now I'll pass on to Advait, so not take much time because our time frame is limited and we have to complete the whole, and we want some discussion from the other people also who are joining, and thanks and welcome everyone to the session. And now Advait and Murari will be in conversation, and they will Murari his studio and some images also. And later on, there could be questions from the public also. You can drop down your comments, or if you want to speak up also at the end, we will try to have some time for that. So pass on to you, Advait. Now you can, and Murari, you can start. Thank you, Paromita, for having us over, and welcome everybody. It's really nice to see your faces today. Murari, thank you for being in conversation with me. So Murari is somebody that I've known for a while since I moved back to Delhi. I've recently worked with him for a platform called Abra that a few of us have started as a self-organized community effort to redistribute resources around performance art. And it was just a way for us to come together in this period of lockdown and find an excuse, if you will, to reach out to each other, find out if they're doing okay, but also to have an opportunity to like keep up the conversations, but also a chance to work together and collaborate and do all the things which have somehow taken back with the disruptions caused by the pandemic. So I was working with Murari for the very first collaboration that we were doing for the platform, which is known as Abra. And Murari did this video piece called The Longest March. And we were having a lot of discussions in the background about it. So that is primarily why I find myself today uh, interlocuting Murari about his practice. So we have like a rough structure for this, and the first part of it is Murari walking us through his studio space where he's been producing the recent body of work that he has been developing. And after that, we'll go into a conversation between him and I. And then finally, depending on how we're doing with time, maybe he'll show us few glimpses of his past works, maybe even the video that he did for Abra. And then towards the end, we'll open up the forum for questions from the audience. So without further ado, Murari, are you ready to give us a tour of your studio? Yes. We can't see you though. Yes, I'm ready. First, yes, thank you so much, Advait, and of course, Sil, for organizing this. हम पहले आपको स्टूडियो दिखाते हैं. So we start from studio, right? Okay. So yes. तो मैं आपको ये
मेरा स्पेस है जहाँ पे ये मैं फर्स्ट स्पेस दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरा सारा ऑब्जेक्ट और थॉट प्रोसेस शुरू होता है। Am I audible and is it clear? Yes, I can hear. तो ये मेरा एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे सारे थॉट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट कलेक्शन, थॉट प्रोसेस। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा अरेंज किया, बट ये यहाँ पे सारे कास्ट करना या जो भी स्कल्पचर पेंटिंग बेसिकली यहाँ से। तो ये रिसेंटली मैंने अभी ये बनाया था जिसको पोस्ट भी किया था। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म्स हैं। ये जो मैंने अभी अब्र के वीडियो में यूज किया था उसी को मैंने कास्ट कर दिया। जो ये एक मैंने परफॉर्मेंस किया था जिसमें मीट को मैं कंटिन्यू आवर ऑलमोस्ट धागे से बांधता रहा था। तो सेम चीजों को मैंने यहाँ पे कास्ट किया था इसको। ये कुछ प्रोसेस है। ये एक है जिसको कि मैं फॉन्ट के आइडिया को लेकर के मैं ये अभी कास्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये इन प्रोसेस में है। ये क्या वीडियो पूरे क्लियर विजिबिलिटी है इसमें? हाँ, वीडियो क्लियर। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। जैसे आप ये देखेंगे कि ये एक हम ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल तक एक जगह पे जाते थे, वहां से ही कुछ फॉन्ट ऑब्जेक्ट हमको मिला था। और फिर ये तो मैं ऐसे मोस्टली इसमें फॉन्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे काम में फॉन्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज नहीं रहता है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और वो बिल्कुल ही एक नए फॉर्म में बन जाता है। मतलब एक बेसिक इंस्पिरेशन वहां से होता है, लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ये सारे जो आप देखेंगे इसका टेक्सचर फोन में इमेज में वो क्लैरिटी आएगी नहीं, बट मैं थोड़ा सा इसको टच करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको इसके सरफेस का आपको एहसास मीन सरफेस का थोड़ा पता चले। इसका क्या मीडियम है मुरारी, लाइक किस चीज से आपने ये स्क्रैप किया है? ये ब्लैक एमसिल है, ब्लैक एमसिल। ओके। जो हम पूरा थोक में ही मंगा के उसको कास्ट करके अंदर बनाने के, ये एक मेरा इन प्रोसेस है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये भी है। इसमें कुछ हम डिजिटली भी काम कर रहे हैं। इसके अभी ये कंप्लीट वर्क नहीं है, मतलब ये सारे एक प्रोसेस है। ये मेरे पेंटिंग्स हैं। ये मैं ऑलमोस्ट मास्टर के बाद स्टार्ट किया था, लेकिन कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि शायद ये सही टाइम है जो मैं अपने पेंटिंग को इंट्रोड्यूस करूं और मैं परफॉर्मेंस और सभी परफॉर्मेंस को लेकर के ही हमेशा एक कॉन्वर्सेशन चलता रहा, जिसमें हम कभी मेरे और खुद भी मेरे को वो जो एक जो टेक्सचर जो हम डिफरेंट कॉन्वर्सेशन में बात करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या चाह रहा था पेंटिंग में मेरे, तो वो कंटिन्यू इतने सालों में कई लेयर्स हुए और कभी मेरे को नहीं लगा कि ये परफेक्ट टाइम है कि ये मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो गया। और फाइनली लास्ट ईयर से मैंने ये पेंटिंग्स कुछ ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि अब मैं मेरे को जो चाहिए था वो कंप्लीट हो पाया। आप ये पेंटिंग भी देखेंगे, शायद पता नहीं कितनी क्लैरिटी है, बट आप इसके टेक्सचर को फील कर पाएंगे। लाइक ये बिल्कुल आपने ये सरफेस कैसे डेवलप करा है इसका? इसमें बहुत तरह ये मिक्स मीडियम, इसमें बहुत तरह के मटेरियल्स यूज हैं। जैसे कि हम बताएं कि कई सालों में कई लेयर्स क्रिएट हुए हैं, वैसे भी हम पुराने कैनवास और कपड़े अलग अलग मटेरियल यूज करके फिर उसके टेक्सचर को क्लीन करना। जैसे कि इसमें देखेंगे कि ये पेंटिंग देखिए, इसमें कपड़े हैं लेकिन फिर मैंने इसमें चॉक पाउडर, कई कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस, आई मीन पीओपी का ये, तो इस तरह के तमाम जो फेविकल ये सब चीज का टेक्सचर क्रिएट कर करके इसको फिर मैंने वो जो कपड़े की आइडेंटिटी उसको भी मैंने खत्म किया है। सॉरी, मैं जो दिखा रहा था, तो आप कपड़े का भी टेक्सचर नहीं है इसमें, और एक अलग ही टेक्सचर आपको मिलेगा जो लगता है कि हाँ वो क्रिएट किया। जो हम बताएं कि मेरे फॉन्ट ऑब्जेक्ट या फॉन्ट मटेरियल्स होने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती। ये मेरा काम है जो मुंबई आर्ट रूम में मैंने दिखाया था, तो कुछ काम इधर है, बाकी सब पैक हो गए। ये कुछ पेंटिंग्स के सीरीज है। मैं थोड़ा सा एक बार डिस्टेंस से दिखा दूं पूरा क्या है, उसके बाद ये नए वाले काम की सीरीज है ना जो उसके साथ आपने हाँ डेवलप? हाँ हाँ,
एक्चुअली इस काम में कहीं ना कहीं जो हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन 2 साल से और या 3 साल से कॉन्सियसली जिस आइडिया को लेकर के हम सोच रहे थे, तो फाइनली मैंने इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया। मतलब आई मीन कंसेप्चुअली जो मेरे दिमाग में चल रहा था, फिर वो काम में कैसे वो आ रहा है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट जैसा डेवलप्ड प्रोसेस है। और खास करके लॉकडाउन में कहीं ना कहीं मेरे को और सोचने और समझने का मौका मिला। हमारी कई कॉन्वर्सेशन भी हुई जिससे मेरे और चीजों को तो आप इसमें भी इसके टेक्सचर्स आप जब देखेंगे तो इसमें लेयरिंग कर रखी है ना अलग अलग मटेरियल से। आई थिंक मे बी स्ट्रॉ या बिल्कुल, किस आपने, कपड़ा तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसमें कपड़े नहीं है, लेकिन इसके स्टार्टिंग के टेक्सचर में मैंने ऐसे रैंडम बहुत सारे चीजें यूज किया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब निकल जाने वाला है कुछ। मैंने हर मटेरियल के साथ टाइम स्पेंड कर करके, मतलब मैं अगर ये बोलूं तो ये 10 साल का पूरा प्रोसेस है। अगर ये फाइनल कैनवस है, मैं 2013 में और 12-13 के अराउंड इस कैनवस को स्टार्ट किया था, जो फाइनली अभी हम डिस्प्ले में लाए हैं। तो इतने लेयर्स इस पे हो चुके हैं। और ये लेयर होना, और ऑब्जेक्ट में भी जो हम बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट आता है और उसमें कंटिन्यू उसके फॉर्म के साथ कॉन्वर्सेशन करना, फिर उसका जो लगातार एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो आपको हर एक काम में दिखेगा। तो मतलब आप जैसे विजुअल इफेक्ट को यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे, आप कैनवस के ऊपर ही उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हो जब तक कि आपको डिजायर्ड विजुअल इफेक्ट नहीं मिलता, rather than हाँ, मेकिंग प्रिपरेटरी स्टडीज के मतलब ये एमसी डालकर या कपड़ा डालकर लेयर करके आपको वो विजुअल इफेक्ट आ रहा है, यानी वो कैनवस ही मतलब वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सरफेस प्रोवाइड करता है जो कि आप चेंज कर देते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को पहला लाइन समझ में, स्टडी इन किस सेंस में, टेक्निकली? मतलब जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट एक कॉम्पोजिशन पर काम कर रहा है तो उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज हो सकते हैं जिसके लिए वो प्रिपरेटरी स्केचेस तैयार करेगा, बट यहाँ पर वो सेम कैनवस के ऊपर ही आप उसको वर्क आप करते रहते हो जब तक कि आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता, रादर देन लाइक एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द साइड एंड देन डेवलपिंग अ टेक्निक कि हाँ मुझे कपड़ा लगाने का ऐसा इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद फाइनली जब मेरे पास सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, सारे नतीजे उनके आ चुके हैं, तो उसके बाद में फाइनल बिल्कुल कैनवस बिल्कुल काम करता हूँ। बिल्कुल, आपने तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कैनवस बोला इसमें। पॉसिबल, हाँ आप बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपने 2 पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है। और एक जो पॉइंट है कंसेप्चुअली हम उस पर शायद बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को लाइक आप कैनवस में ऐसा नहीं होता कि मैं बार बार उस कैनवस की तरफ लौटता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं एक बार फ्रांसिस बेकन का काम देख रहा था, और उसका एक काम के प्रति फिलॉसफी जो मेरे को समझ में आया। हेलो? हाँ हाँ, वी कैन हियर हाँ, यू। तो काम के प्रति जो उसका फिलॉसफी समझ में आया, तो कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत रिलेट करता। मैं किसी भी कैनवास को ऐसा नहीं कि ओके ये काम मेरा नहीं बना, अगर नहीं बनता तो वो मेरे को लगता है कि ये कहाँ पे लीड कर, क्योंकि ब्लॉकेज से हमको लगता है कि शायद हम कुछ सोच पाते हैं। अगर क्लियर कट बहुत ऑब्जेक्ट होता है, फिर वहां पे मेरा पॉसिबिलिटीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो बार बार इसलिए कैनवस पे लौटना, और मैं कोई भी अपने बैचलर का भी काम हो तो उसको ऐसे डिस्कार्डेड करके नहीं हटाता हूँ। मैं उस पर फिर काम करता हूँ, फिर काम करता हूँ, फिर काम करता हूँ। तो ये चीजें मेरा एक फ्रेंड अभी पूछ भी रहा था कि तुम्हारा फाइनल कब काम होता है, तो हम उसको आंसर ये किए कि मेरे स्टूडियो से जब तक नहीं निकले, क्योंकि मैं बार बार उस पर लौटते रहता। तो खैर ये चीजें हैं, पर इसमें बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो ये सब सारे प्रोसेस, ये जैसे कि आप ये देखेंगे कि मुंबई आर्ट रूम के लिए मैं काम किया था, इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का था। बट ये टेक्निकली कुछ इसमें प्रॉब्लम आया, और जिसके वजह से ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये ये आपने कुछ अपोजिट मुंबई आर्ट रूम में? मुंबई आर्ट रूम के टाइम में मैंने इसको बनाया था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल और विजुअली जो उसमें जो लकड़ी आई मीन जो वुड यूज हुआ है, वो मेरे को बहुत सही नहीं लग रहा था। तो वो थोड़ा फर्नीचर का लुक देने लगा, और दो चीजों की वजह से मैंने फिर इसको बोला कि आगे प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह के हैं। ये मेरे लॉकडाउन के टाइम का डायरी है। इसमें जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ या जैसे भी, तो मैं इस पे लौटता हूँ। और ये क्योंकि
जॉब होने की वजह से और टाइम का एक बहुत ब्रेकेज होने की वजह से यही एक ऐसा मीडियम हो जाता है जहाँ पे मैं कभी कभी लौट के चीजें करता हूँ। ये सारे मेरे डायरी के ये पेजेस हैं। ये सब कुछ मेरे प्रोसेस है। हमारा प्लान था 10 मिनट से, तो ये सब मेरे ड्राइंग्स है। मैं अपने टाइम से आगे जा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वी डूइंग ओके फॉर दैट। हाँ, तो ये ड्राइंग्स है और मैं फाइनल एक लुक अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि आपको फिर पूरे लाइक इस प्रोजेक्ट का एक नैरेटिव मिल पाएगा, जैसे कि उसका फॉर्म या फिर कैनवस का फॉर्म। हम इस चीज पर थोड़ा सा बाद में भी बात करेंगे, अब्र बिल्कुल के लिए मैंने प्रोजेक्ट करा था उसके कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज वहां पर भी वो बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांट कर एक तरीके से उसका सेंस बना रहे थे और उसको कहीं ना कहीं लैंडस्केप पर डिस्प्लेस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी जो मुरारी ने हमको एक ओवरव्यू दिया अपने स्टूडियो का, उसमें भी वो डिसोसिएशन, बॉडी को अलग अलग हिस्से में फ्रैगमेंट करने वाला जो इफेक्ट है वो दिख रहा है, और ये सारे हिस्से मिलाकर हमें एक स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल। तो यही था। अभी हम शायद ओके, तो अभी हम बात पे ही करते हैं क्योंकि स्टूडियो में ज़्यादा टाइम ये हो गया, क्योंकि मैं कैमरा को थोड़ा सा लो मूव करना चाह रहा था क्योंकि वो ऐसा ना ब्लर हो जाए या फिर, तो क्योंकि इमेज तो क्लियर मिलना चाहिए। हाँ I think we could see pretty much everything, and you also gave us details into the canvases and the surfaces, which is pretty यस remarkable. All wonderful. जिनको कॉन्टेक्स्ट पता हो थोड़ा सा, मुरारी ने मुंबई आर्ट रूम में शो करा था 2017 में या 18 में? 18 में। 18 में शौनक महबूबानी के साथ, जिसका नाम था फॉन्डल, और वहाँ पर वो सेक्सुअल कंसेंट को लेकर उन्होंने स्कल्पचर्स और एक इंटरैक्टिव माहौल में एक प्लेफुल तरीके से उसको सेक्सुअल कंसेंट के नोशन को एक्सप्लोर कर रहा था, और सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक इंटरैक्टिविटी अपने में लिए हुए थे। आई डोंट नो मुरारी, मे बी यू कैन पॉइंट टू अ फ्यू वर्क्स फ्रॉम फॉन्डल, अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, या फिर आपके आसपास अभी सराउंडिंग में कोई काम पड़ा जैसे वो बॉल्स थे। फॉन्डल का ये जो है अभी तो नॉन फंक्शनल कंडीशन में है, तो उसका वो वैल्यू और उस कॉन्वर्सेशन को लाना, कॉन्वर्सेशन हम बात कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं जो देखे भी होंगे फॉन्डल में वो क्योंकि इतना क्लियर है कि मेरा कहीं ना कहीं बॉडी को लेकर के एक इंक्वायरी रहा है और उसके एक लिबरल प्रोसेस को लेकर के रहा है। वो किस तरह से, चाहे ऑडियंस के तरफ से हो या वो आर्टिस्ट के तरफ से हो पोजीशन, लेकिन वो एक रहा है। तो जो मुंबई आर्ट रूम का प्रोजेक्ट था वो 16 में मैंने वहां पे थोड़ा सा इनिशिएट हुआ था इस आइडिया को लेकर के, जहाँ पे हम जेंडर और सेक्सुअलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमारा कोलैबोरेशन आदिति के साथ हुआ था उस टाइम में। तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे और उसका एक काम हमने वहां पे प्रोड्यूस किया था, जो फिर जिसका कहीं ना कहीं वो फाइनल प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर हम इस काम के बारे में देखें तो फाइनल जब डेवलपमेंट हुआ तो वो हमारे में लाइक हम लोग जब मुंबई आर्ट रूम कर रहे थे, मैं और सौनक, तो हम लोग एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया उस प्रोजेक्ट के अराउंड, और वो फिर वहां पे एग्जिबिट हुआ। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का आइडिया ये था कि हम स्पेस इटसेल्फ कैसे परफॉर्मेटिविटी क्रिएट करिए, जहाँ पे स्पेस को हमने एक प्लेग्राउंड का आइडिया दिया था। कोई भी स्पॉटलाइट नहीं था, सिर्फ सेंटर लाइट था, ट्यूब लाइट था एक उसमें, और सारे ऑब्जेक्ट्स टच करने के लिए थे, और सारे ऑब्जेक्ट्स का बॉडली डिस्प्ले भी था। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप जैसे एग्जीबिशन स्पेस में देखते हैं तो स्कल्पचर है तो उसका सर्टेन एक स्पेस होता है, पेंटिंग है तो इसका, लेकिन इसमें स्कल्पचर भी पेंटिंग के जैसे प्लेस हो रहा है, और पेंटिंग भी स्कल्पचर फॉर्म में पेंट लाइक आई मीन डिस्प्ले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉडली प्ले मीन्स उसका जो कहाँ पे कौन सा वर्क आएगा, तो कहीं ना कहीं बॉडली एक कैलकुलेटेड था।
और हर लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और इंटरेक्ट के दौरान होता क्या, तो उनका एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत परफॉर्मेटिव जेस्चर एक क्रिएट कर रहा था, जहाँ पे वो एक फन की तरह ले रहे थे, और कहीं ना कहीं वो कॉन्वर्सेशन को कहीं और ले जा रहा था। हमें लग रहा था कि हम जो बार बार बात करने की कोशिश करते कि जब आप काम प्रोड्यूस करते हो और जब वो एक जगह पे पहुंचता है तो स्पेक्टेटर उसको फिर एक अपना कॉन्वर्सेशन क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसमें थी। और आ, उसी काम का ये जो मैंने अभी दिखाया था वो इसी काम में से एक ये ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सीमेंट का, इसके अंदर हाँ, इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर एक चैम्बर है, तो आप देखेंगे कि इसमें से वाटर इसमें कंटेन होता था, और ये एक यहाँ पे कंटिन्यू तीन जैसा, लाइक उसमें एक वाटर आता था कंटिन्यू और फिर नीचे की तरफ जाता था, तो इस तरह के वर्क सब थे। एक बॉल जैसा था, उसमें अलग अलग थे, खैर उसको एक्सप्लेन करने में इट विल टेक टू मच टाइम। हाँ, मुरारी के जो भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते थे फॉन्डल में, उसमें सब में एक सेंचुअलिटी लिए हुए होते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने डिस्प्ले भी करा था ऑब्जेक्ट्स को, वो सब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसी लेवल पर उन्होंने एग्जीबिशन में लगाए थे। तो फॉर इंस्टेंस इफ ही वाज प्लेइंग अराउंड विद लाइक 2 balls, then they were installed at the level of the chest, on chest height, and then there were like other sort of objects which had this kind of like cardinal appeal to them. मतलब उनकी materiality थोड़ी सी confusing थी। It was playing like this mind trick, and it was also inviting in the sense like even with the MC sculptures, I think हम कहीं ना कहीं वो same thought का extension देखते हैं। जब आप MC sculptures को देखते हो तो लगता है कि they will have a certain sort of flesh-like quality, but when you touch them, they're quite hard, and steel has gone solid after its fusion. और अभी मतलब एकदम से you can't, it's unyielding. You can't really like they're not soft anymore. So a lot of the objects that Murari was working with had this kind of like confusing, ambiguous materiality to them, which was bringing in an element of sensuality. And I was speaking to Murari about sensuality earlier, and I was asking him whether this is an accidental presence in his work, यानी कि क्या ये by the way उनके काम में आ जाती है, या फिर is he working more actively to make it present in his work? Murari, do you have an yes, comment? ओके, थैंक यू सो मच अद्वित। ये सवाल मेरे लिए हमेशा किसी ने इस तरह से प्रोवोकेशन और इस तरह से कॉन्वर्सेशन नहीं मिल पाया, तो ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे क्वेरी का आयाम था, जहाँ पे मेरे काम में ये आता था, और इसको हम थोड़ा सा एक फनी जोक कह लें, या जैसे फनी लाइन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे स्कूल टाइम में, बचपन में, मेरा एक फ्रेंड बोला करता था पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। तो इसमें दो तीन चीजों को हम अपने प्रैक्टिस को, क्योंकि हम लोग टाइम से ये करना है, तो हम प्रैक्टिस को भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हुए इस कॉन्वर्सेशन इस को आंसर कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये था कि वो जो कंफ्यूजन का स्टेज था, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था कि सॉरी, तो उसमें जो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, वो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आज के जो प्रैक्टिस है उसमें मेरे को आइडिया और प्रोसेस को लेकर के लगता है कि आइडिया से, प्रोसेस से कभी आइडिया एक्सटेंड होता है। जैसे कि अभी मैं टेक्सचर के बारे में बात कर रहा था, या मेटेलिटी के बारे में बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था, कहाँ पे वो है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर है जो हमेशा आइडिया के बारे में बात करते हैं, तो ये बड़ा ओवरलैप्ड कॉन्वर्सेशन है, मेरे लिए कंफ्यूजिंग। और तो कहने का मतलब इसी फेज से मैं गुजर रहा था, जहाँ पे मेरे काम में एक सेंसुअल ऑब्जेक्ट का आना, सेक्सुअलिटी और इन सब चीजों को लेकर के मेरे काम में आ रहा था, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कंडीशन और मेरे काम में जो चीजें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन की तरह देख रहा था। जैसे कि
मैं एक बार अमृता प्रीतम को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे को एक बहुत अच्छा रिसोर्स मिला जिसमें एक एक्ट्रेस जो उनको नरेट कर रही थी वो बहुत अच्छी बात करी और सेम हम दोनों का क्वेरी सेम ही था। उसमें आप अमृता प्रीतम के जब आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो वो बताती हैं कि उनके जॉनर पोइट्री होता है, उसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है रोमांटिक प्रोग्रेसिव, रोमांटिक प्रोग्रेसिव, यस, रोमांटिक हाइफन प्रोग्रेसिव। तो ये बहुत एक्साइटिंग था। उनका एक पोएट्री है अमृता प्रीतम का जहाँ पे वो उनका पोएट्री का है एक मुलाकात, एक मुलाकात। तो उस पोएट्री में आप जब देखेंगे तो लैंडस्केप और किस तरह से जो है रिवॉल्यूशन और किस तरह से रोमांस की बात हो रही है, ये मतलब आप मल्टीपल लेयर्ड है, मींस यू लाइक आई कांट एक्सप्लेन। मतलब उस टाइम में भी मेरे पास शब्द नहीं था, मेरे पास ये आ कि वाओ क्या वर्ड है रोमांटिक प्रोग्रेसिव। और मैं सोचा कि रोमांस को, तो उसमें वो बात करती है कि what you feel strongly you can explain, you can express it romantically। तो उस टाइम में मेरे लिए मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर पाया और इस तरह के तमाम सवाल मेरे पास आ गए लेकिन कनेक्ट नहीं कर। जब हमारी बात आपके साथ आ रही थी तो ऐसे कई सालों के, मैंने बोला भी कि मेरे कई साल के ऐसे डॉट्स जो एक के बाद एक कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। और तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं कनेक्ट करने का वजह मैं समझा कि क्या था कि मैं जो बैकग्राउंड की स्टोरी दे रहा था वो यही था कि आप जब काम प्रोड्यूस होता है, जो काम बन रहा है उस टाइम में जैसे कि हम जिस मनोदशा, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल इस लास्ट वीडियो में भी बात किए थे कि आप एक स्ट्रीम सिचुएशन के बारे में जब बात कर रहे हैं जहाँ पे बॉडी और का एक स्ट्रीम कंडीशन है, जहाँ पे एक अब्सर्ड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, या हम सिंपली अगर इसको एक स्ट्रीम की बात करें तो और जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और जब हम इसको समझने के लिए पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट सिचुएशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कितना जस्टिफाई करता है और आर्टिस्ट के लिए जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वो उसमें बहुत लेयर है। और हमको लग रहा है कि सेंसुअलिटी वहीं पे आता है। जब आप उस दिन बोल भी रहे थे तो मेरे को लग रहा है कि सेंसुअलिटी प्रोडक्ट से जो 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 मेरे काम में प्रोडक्ट होने के बाद नहीं, मतलब मेरा ये अटेम्प्ट नहीं होता कि मैं इस चीज को बनाने जा रहा हूँ, उसका जो प्रोसेस है, चाहे आप इसके स्किन लेयर्स देखेंगे या फिर आप जो जो टेक्सचर है, तो वो जो प्रोसेस है वो मेरे लिए सेंसुअल हो जाता है। और इसके बहुत सारे और कॉन्वर्सेशन है, जैसे कि हमको लग रहा है कई बार ये आपको हल्का करता है, कई बार आपको एक 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 जो जो आप मल्टी लेयर्ड और जैसे हम बात कर रहे थे कि एक डबल मीनिंग में बात होता है, जो जो कहीं ना कहीं इनबिल्ट हम लोग भोजपुरी सॉन्ग को सुनते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आ जाती है। तो हमें मेरे काम में वो एक कॉन्शियस अप्रोच नहीं था कि मैं अब जेंडर या सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरी इंक्वायरी उस टाइम में भी वही थी, जो शरीर की एक मनोदशा होती है, लेकिन उसका जो फाइनल आउटपुट था वो एक जगह पे जो पहुंचता है, वो प्रक्रिया को मैं सेंसुअल और समझ, पता नहीं, मैं सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो कि मैं आंसर कर पाया क्लियर कि नहीं। थोड़ा सा सबको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, अगर आप मुरारी के काम से फेमिलियर नहीं हैं तो बेसिकली मुरारी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल और एक्सट्रीम बॉडीली कंडीशंस पर काम करते हैं, उनको दर्शाने की कोशिश करते हैं अपने काम के द्वारा, जिसमें बॉडी के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो समाप्त हो जाते हैं या फिर चैलेंज हो जाते हैं या फिर डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कुछ ऐसी कहानियों से जहाँ से मुरारी इंस्पायर होते हैं। प्रेमचंद की पूस की रात हुई, या फिर मंटो की नेम ऑफ द स्टोरी, मंटो, खोल दो। हाँ, खोदो में बहुत क्विकली अगर मैं आपको समराइज करूं तो उसमें एक सकीना नाम का किरदार होता है जो कि पार्टीशन के बाद इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे होते हैं, और उनका इस जर्नी के दौरान कई बार रेप होता है। और उसके बाद जब वो फाइनली लास्ट चैप्टर में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर विंडो की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं खोल दो। तो सकीना
एक तरीके से बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, वो अपने कपड़े उतारने लगती है इस कमांड को सुनकर। तो कहीं ना कहीं मुरारी इस तरीके के मनोदशा को अपने काम के थ्रू दर्शाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर बॉडी के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो एक डिफरेंट प्रकार से काम करने लगते हैं और थोड़े से डिसफंक्शनल होने लगते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुरारी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो कंसेप्चुअली रुझान रहा है वो ऐसी ही मनोदशा को दिखाने में रहा है, लेकिन उसका जो प्रोसेस रहा है वो कहीं ना कहीं सेंसुअलिटी की तरफ हो जाता है, और प्रोसेस जो प्रतिक्रिया है काम बनाने की, जो मटेरियल के प्रति उनकी अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं सेंसुअल हो जाते हैं। आई थिंक मुरारी वुड अग्री। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से बहुत क्लियर किया, और मेरे को लग रहा है कि वो स्ट्रीम सिचुएशन का जो कनेक्शन के बारे में हम कई बार बात करें, हमें लग रहा है कि हमें पढ़ने की जरूरत है। मैं समझना भी चाह रहा हूँ कि हमको लग रहा है कि उसका एक कनेक्शन होता है, जो हमारे लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपने भी बताने की कोशिश की थी कि उसका एक कनेक्शन है। पर इसको मैंने बताया कि जैसे मैंने इतने ईयर पहले जब हम अमृता प्रीतम की उस पोएट्री को इस वर्ड से कनेक्ट समझ रहे थे, और मेरे को कनेक्शन नहीं मिला था कि ये रोमांटिक और प्रोग्रेसिव क्या है, तो सेम चीज है अभी मेरे की ये ट्रॉमा और रोमांस क्या है। बट इसकी जो प्रोसेस है जहाँ पे मैं कनेक्ट समझने की कोशिश कर, लेकिन स्टिल मेरे पास वर्ड नहीं है कि हाउ कैन आई क्रिएट दैट कॉन्वर्सेशन। तो कहने का मतलब वो मेरी अभी इंक्वायरी भी है, मेरे समझने की मैं कोशिश करूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। शायद मेरे लैंग्वेज से नहीं इतना क्लियर हुआ होगा। तो जब हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे मनोज मुरारी, तो हम यही कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जब ट्रॉमा के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें ट्रॉमा में सेक्सुअलिटी का एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब दोनों में क्या कनेक्शन है। फिर कहीं ना कहीं बात होते होते हमने सोचा कि जो भी हमारा ट्रॉमा का एक्सपीरियंस होता है वो बॉडी पर केंद्रित होता है, और कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी बॉडी को डिफाइन करने में और हमारा जो सब्जेक्टिविटी है उसे डिफाइन करने में एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। और मतलब बॉडी इज डेफिनेटिव ऑफ and sexuality is definitive of how some of these experiences are perceived. So and even like when one looks at like the history of psychoanalysis, या फिर जब हम ट्रॉमा थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सेक्सुअलिटी और ट्रॉमा के बीच में कनेक्शंस अक्सर करके दिखाई देते। फ्रॉइड भी जब साइको एनालिसिस की बात करता है तो उसके कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्पल्स आप देखो वो सेक्सुअल मेटाफर्स के ऊपर आधारित होते हैं, चाहे वो कास्ट्रेशन एंजाइटी की बात करें, या फिर हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें, या फिर हम नार्सिसिज्म के ऊपर बात करें, तो जो भी उनके उदाहरण होते हैं कहीं ना कहीं वो सेक्सुअलिटी के संबंध में होते हैं। और सेक्सुअलिटी एक तरीके से साइको एनालिसिस का माध्यम बोल सकते हो, या फिर थेरेपी का माध्यम बन जाती है। कहीं ना कहीं हम एक बंदे की जो ग्रोथ है वो सेक्सुअलिटी के मेटाफर से उसको हम उजागर करते हैं। तो ये कनेक्शंस तो हैं, पर आई थिंक अभी हम इसको आगे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे के काम में इवॉल्व कर रहे हैं, और किस तरीके से ये जो दो कनेक्शन है ट्रॉमा एंड सेक्सुअलिटी, हाउ डज दिस इनफोल्ड। दूसरी चीज जो मैं मुरारी से पूछना चाहता था उनके काम से लेकर, वो था कनेक्शन लैंडस्केप एंड बॉडी, जो कि हमें द लॉन्गेस्ट मार्च करके जो उनका वीडियो था के लिए उसमें भी काफी दिखाई देता है। तो मुरारी आप ये बॉडी को लैंडस्केप से किस तरीके से कनेक्ट करते हो? आपने कई बार मेरे को बताया कि जब आप लैंडस्केप को देखते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बॉडी की परछाई दिखती है, या फिर एक तरीके से आप जो जिस तरीके से हम बॉडी को देखते हैं वो पर्सपेक्टिव आप लैंडस्केप के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप से लगा कर देखते हो। जब आप हार्डनेस की बात कर रहे थे, फॉर इंस्टेंस जब बूट्स जो होते हैं जब वो मार्च करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी मार्चिंग से उस जिस ग्राउंड के ऊपर वो मार्च कर रहे हैं उसकी भी सतह हार्डन होती है। तो इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो हमें
एक्शन और रिएक्शन की प्रतिक्रिया दिखती है, और बॉडी लैंडस्केप को कंस्ट्रक्ट कर रही है, लैंडस्केप बॉडी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इस टाइप की कुछ प्रतिक्रिया दिखती है। पर आपके लिए वो कनेक्शन क्या है बिटवीन लैंडस्केप एंड बॉडी? बिल्कुल, थैंक यू अदित फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं पता नहीं, बॉडी को जब भी हम बॉडी की बात करते हैं इटसेल्फ एक 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 स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है, हम एक लाइन दिख जाता है हमारे चारों तरफ। पर जिस जिस बॉडी के जिस दशा के बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल वो उसके उसके फॉर्म नहीं है। आई मीन फॉर्म नहीं है, ये एक तरह से ऐसे समझे कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो लाइक जिसका केंद्र नहीं है, आई मीन विशाल है। तो हमको लग रहा है कि जब भी हम स्ट्रीम सिचुएशन के बारे में बात करते हैं या फिर आप इस तरह की चीजें देखेंगे तो उसका जो स्पैंड है, हमको लग रहा है कि वो लैंडस्केप को बहुत टच करता है। और लैंडस्केप को हम कोई अलग से नहीं दे, लैंडस्केप में होना मेरे को लगता है कि जो लैंडस्केप है itself हम उसको बॉडी की तरह देख रहे हैं। पर डिफरेंस इतना ही है कि बॉडी का जो 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 बॉडी की जिस चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल बॉडी का जो फॉर्म है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी जो दशा से जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, पता नहीं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मैं कहने की बात करूं कि जहाँ पे एक सेंस नहीं है, जहाँ पे हम सोच के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमको लग रहा है कि बड़ा एक यूनिवर्सल फॉर्म ले लेता है। और ये जो इसकी यूनिवर्सलिटी है, ये कहीं ना हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसका बॉडी का स्पैंड जैसा हम देखते हैं, फैलाव जैसा देखते हैं, जो हमको लग रहा है कि लैंडस्केप की तरफ मूव करता है। और लैंडस्केप को भी हम उसी बॉडी की तरह देखते हैं, जैसे कि हम बॉडी का जो जिस तरह से आप देखेंगे मेरे काम में कि बॉडी एक पार्ट पार्ट के रूप में आता है, तो हम कहीं ना कहीं बॉडी को भी, लैंडस्केप को भी उसी तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे कि आप चाहे वो ट्री हो, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे मैं कई बार अपने बातों में कह रहा हूँ कि अगर आप एक एक मैदान है उस पे वो ग्रीन है तो फिर उसके साथ चलना, तो इस तरह की तमाम चीजें, पता नहीं ये एक क्लियर हो पा रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन आई डोंट नो, लाइक एक एब्स्ट्रैक्शन जैसा है। मैं अगर एक लाइन में इसको बोलूं तो यही बोलूंगा कि जो बॉडी का स्पैंड है, जो फैलाव है, वो मेरे को लग रहा है कि एक स्ट्रीम सिचुएशन में लैंडस्केप की तरफ मूव करता है, और लैंडस्केप भी मेरे लिए बॉडी जैसा ही मैं देखता हूँ फिर। तो कहीं ना कहीं जो हमारे मेंटल और साइकिक थ्रेशोल्ड्स होते हैं, जो पेन का थ्रेशोल्ड मान लो या फिर जो हमारी मानसिक स्थिति का थ्रेशोल्ड मान लो, तो कहीं ना कहीं जब हम थ्रेशोल्ड के परे जाते हैं किसी भी घटना के कारण, तो एक तरीके से एक विस्तार होता है। किस चीज का विस्तार होता है आई डोंट नो, मे बी लाइक जो साइकिक प्रोसेसेस है उनका विस्तार होता है। कहीं ना कहीं वो एक लैंडस्केप का रूप ले लेता है, वो एक एक्सपेंसिव व्यू में चला जाता है। जैसे सडनली जब हम अपने फोन पर शिफ्ट करते हैं लैंडस्केप से पोर्ट्रेट व्यू, मे बी कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो हमारे मेंटल में भी एक तरीके का स्विच होता है, जिसमें जो हमारी बॉडी पर केंद्रित होती है हमारी सब्जेक्टिविटी, कहीं ना कहीं वो एक एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चल देती है, या फिर एक डिफरेंट अपना व्यू पॉइंट स्विच कर लेती है। तो आई थिंक कि आप शायद वही विस्तार की बात कर रहे हो कि उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केपिक दृष्टिकोण से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट एब्स्ट्रैक्ट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम में ये फिगरेटिवली भी दिखता है और आपकी रियलिटी में भी दिखता है। जब आप फॉर इंस्टेंस हार्डनेस की बात करें, तो मुरारी एग्जांपल दे रहे थे लेबर प्रोसेसेस के संबंध में कि जब कोई रिक्शा वाला या साइकिल वाला जब अपना हैंडल्स को पकड़ता है तो यहाँ पर कैलसेस पड़ जाते हैं। तो वो एक तरीके से एक ही पार्ट के बार बार एक तरीके से प्रयोग होने के कारण बॉडी में भी जिस तरीके से लैंडस्केप में बदलाव आते हैं, बॉडी भी उस तरीके से अपने आप में बदलाव लाती है। और
कहीं ना कहीं बॉडी में भी हमें लैंडस्केप के एलिमेंट एक बहुत ही फिगरेटिव लेवल पर भी दिखते हैं, ना केवल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर। बट और अगर हम लॉन्गेस्ट मार्च की बात करें तो उसमें आपका जो इमेजेस का यूज है उसमें डेफिनेटली वो कनेक्शन दिखता है, जहाँ पर आपने अपने ऊपर प्लास्टर लगाकर इस तरीके से स्टेजिंग की है इमेजेस की, जहाँ पर आप एक लैंडस्केप में ट्रांसफॉर्म होते हुए लग रहे हो। यहाँ पर हम ये नहीं अंतर बता सकते कि आप पत्थर हो या फिर आप हो या फिर किस चीज का शॉट, कौन से पार्ट का शॉट है। मतलब वो डिस्टिंक्शन जो है वो गायब हो जाता है उस थ्रेशोल्ड के साथ, आई थिंक, व्हिच इज व्हाट यू वर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल और आप जैसे वो वीडियो लग रहा है कि मेरे आइडिया को बहुत जस्टिफाई भी कर रहा है, जस्टिफाई इन द सेंस कि बहुत क्लियर भी हो रहा है कि आप देखेंगे कि जहाँ पे बॉडी है और फिर उसका जो जो एब्स्ट्रैक्शन और कहीं ना कहीं जो हम फिगरेटिव जो फॉर्म आप बोले वो उस वीडियो में कहीं ना कहीं दिखता है कि आप फिर हम लैंडस्केप को कैसे देख रहे हैं। तो उसका ग्लिम्स कहीं ना कहीं वो वीडियो में मिलता है कि हम क्या कहने की कोशिश करें, जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन है वो कितनी एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है अगर उसको फिगरेटिवली समझें। जैसे कि अगर आप जब जहाँ पे हम बात कर रहे थे मंचो की सकीना के बारे में कि उसकी जो मनोदशा है अगर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किस किस रूप में आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से लैंडस्केप का जो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और फिर उसको जब आप एक एक फिगरेटिव रूप कह सकते हैं या पता नहीं जो जो क्लैरिटी है तो वो किस तरह का फिर फॉर्म ले रहा है, तो वो उस वीडियो में शायद मेरे को लग रहा है कि दिख रहा है दिख रहा है। और हाँ बस आई थिंक तो एक आई तरीके की थिंक इमेजिनेटिव एक्सरसाइज भी, जैसे कई थेरेपीज होती हैं वो भी इस तरीके की एक्सरसाइजेस का एम्प्लॉयमेंट करती हैं, जहाँ पर हम लोग इमेजिनेशन का और क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हैं उन सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को विजुअलाइज करके समझने के लिए, जो कि हम रिप्रेस कर लेते हैं और जिनके कारण हमें इस तरीके के क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस से गुजरना पड़ता है। तो कई थेरेपी एक्सरसाइजेस भी आर्ट को या फिर विजुअलाइजेशन को काफी महत्व देती हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी आर्ट उस तरफ लीन करती है कि जब इस ट्रॉमा को समझने के लिए आप एक तरीके से उसका मटेरियल विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि किस अगर ये लैंडस्केप होता, इस पेन को हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये हम एक विजुअल के तहत बयान करते तो किस तरीके का लैंडस्केप होता। तो इज दिस समथिंग दैट यू थिंक अबाउट और इज दिस समथिंग एल्स ऑल टुगेदर? बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से यही आप बहुत ही लिटरली अगर अगर मैं आपको अगर बहुत ही क्लियर मैं बताऊं तो आप बहुत सारे ऐसे राइटर्स को देखेंगे जो सिंपली आप भूल जाइए कि लैंडस्केप की उस उतनी अगर हम उस फिलॉसफी में नहीं भी जाए तो आप देखेंगे कि अगर लैंडस्केप को कोई इंट्रोड्यूस किया है तो आर्टिस्ट ने किया है। मतलब लाइक अगर बहुत लिटरल टर्म में देखें तो आप बहुत सारे राइटिंग में पाएंगे कि ऐसे झरने की तरह या फिर तुम्हारे बाल जो हैं इसकी तरह। तो कहीं ना कहीं लैंडस्केप की जो चर्चा है, लैंडस्केप को जो टच करने का बॉडी से या फिर उस कॉन्वर्सेशन में जो आता है वो हमको लग रहा है कि एक एक्सपीरियंशियल भी हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और कल ही मैं गालिब को सुना था और जगजीत सिंह को, तो उसमें कई ऐसे लाइंस आए कि मेरे दिल मतलब अगर वो बात करें तो वो स्काई से कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो वो बहुत ही हमको लग रहा है कि एक्सपीरियंशियल भी हो जाता है और कहीं ना कहीं लाइक वो एक कनेक्शन बनता है। आई मीन वो क्लैरिटी आती है। मुरारी, मुझे पता है आपके काम में आप ऐसी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो स्पेस है, स्पेशली जब आप परफॉर्मेंस को माध्यम बना के काम करते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि स्पेस की परफॉर्मेटिविटी के साथ खेला जाए और स्पेस को ही हम किस तरीके से इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो खुद ही लोगों को परफॉर्म करवाए। और उसमें आप सिर्फ ना केवल जो आर्टिस्ट है उसको एक परफॉर्मेंस का सेंटर मानते हैं ना, बल्कि आप वो ऑडियंस को भी परफॉर्मेटिविटी बिल्कुल एक्सटेंड करते हो। आप कोशिश करते हो कि बिल्कुल ऑडियंस भी इंटरैक्ट करे, ऑडियंस भी परफॉर्म करे। तो इस प्रोसेस के दौरान कभी कोई असंभावित घटना घटी है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और जो कि
परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ना हो एज अ परफॉर्मर, एंड देन हाउ डिड यू गो अबाउट इट, हाउ डिड यू रिएक्ट टू इट? अगर आपको याद ना है तो मुझे कुछ ऐसे पता है जो हुआ था जो कि मैं बता ये सकता हूँ। आप बता सकते हैं। फाउंडर के दौरान आई थिंक आप एक परफॉर्मेंस कर रहे थे जहाँ पर मुरारी ने हाँ अपने आप स्लीपिंग बैग के अंदर बंद करा हुआ था, बिल्कुल और इट वाज अ बिट लाइक दैट परफॉर्मेंस बाय मरीना अब्रामोविच जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स टेबल पर थे और इंक्लूडिंग अ लोडेड गन, एंड द ऑडियंस वर इनवाइटेड टू take an object and then perform with her body using that object or to use that object on a body. तो फिर एक आदमी ने फाइनली वो लोडेड गन उठाकर उसकी तरफ जब पॉइंट करा था, फिर गैलरी वालों को फाइनली वो परफॉर्मेंस रुकवाना पड़ा। बट उस परफॉर्मेंस का पूरा एक तरीके से बोलो तो मैसेज यही था कि अगर वो लिमिट हटा दें जो सोसाइटी में जो भी हमारे एक तरीके से नॉर्म्स मान लो या फिर सोसाइटी के रूल्स बोल लो उनको, जिसके कारण से हम अपना बिहेवियर एक लिमिटेशंस के विद इन करते हैं, लेकिन अगर वो लिमिटेशंस किसी तरीके से सस्पेंड कर दी जाए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, जैसे कि परफॉर्मेंस आर्ट का एनवायरनमेंट मान लीजिए, तो वो हमारा जो बिहेवियर है मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाती, और फिर वो बिहेवियर कहाँ जाके पहुंचेगा वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहानी कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं आई थिंक नहीं बिल्कुल वो एग्जैक्टली वैसा ही था। मुंबई आर्ट रूम में वो कंसेंट आइडिया था और वो कंसेंट क्रॉस हो गया पूरा। तो बहुत बहुत कुछ ऐसे बच्चे आ गए थे और बिल्कुल ही वो बहुत बुरे तरह से लाइक बॉडी के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ भी सिमिलरली बिहेव करने लगे। ऐसे कई एक्सपीरियंस है, लेकिन पता है इस सवाल इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है और खास करके आज के टाइम के लिए भी हमको लग रहा है कि परफॉर्मेंस का मतलब ये हो जाता है कि हम बॉडी कैसे स्पेस पे रिएक्ट कर रहा है। और पता नहीं मेरे को इस टाइम में यही एक कॉन्वर्सेशन समझने की जरूरत होती है, और हमको लगता है कि एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन जरूरत भी है, क्योंकि परफॉर्मेंस एक प्री डिफाइंड इंडिया में खास करके जिस तरह से प्रैक्टिस अभी हो रहा है, तो आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस मतलब एक आर्टिस्ट जाएगा वहां पे स्पेस पे परफॉर्म करेगा। लेकिन मेरी इंक्वायरी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, और मैं सोचता हूँ कि क्या स्पेक्टेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेस itself कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो ये तमाम कोशिश आप देखेंगे कि मेरे परफॉर्मेटिविटी में आती रही है मुंबई आर्ट रूम से, और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट और पहले से शुरू हो गई, जहां पे सिर्फ मेरा बॉडी ही परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। हो सकता है कि वो स्पेस इनवाइट कर रहा है, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट इनवाइट कर रहा है, हो सकता है कि स्पेक्टेटर खुद ही परफॉर्म कर रहा है और आर्टिस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरह की तमाम मेरी है, और परफॉर्मेंस का जो एक प्रैक्टिस जो आप देखेंगे कि मैं कहीं ना कहीं मेरी एक इंक्वायरी हो गई है कि मीडियम के साथ भी मेरा एक रहता है कि आइडिया सिर्फ आइडिया कंसेप्चुअली नहीं कि मैं ये इसको लेकर के काम करता हूँ, मेरा प्रोसेस itself मेरी इंक्वायरी बन जाती है, जैसे कि वो चाहे परफॉर्मेटिविटी को लेकर के हो, चाहे मटेरियलिटी को लेकर के हो। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो आपके इस सवाल में बहुत सारे लेयर हैं, और हमको लग रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और खासकर मेरे लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं अपने आप को किस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ। सॉरी। हाँ I think we have about 10 minutes to 6. So, Paromita, how are we doing for time? Should we open it up to a wider discussion with the audience if they have any questions? I think we have some time. If 10 minutes, okay. So, are there any questions from the public they can ask, or is there something more from your side also to show? Murari, कुछ और था क्या आपके तरफ से? और दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको लग रहा है ये एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, क्योंकि उसको फिर दिखाना और ये सब चीजें। हमें लग रहा है कि हम बात ही कर लेते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन और कुछ ऐसा हुआ तो बात में ही क्लियरिटी हो जाएगी। Okay. So, audience also, if जो भी सुन रहे हैं, you can ask if there is anything you want to know. So, Murari ने इतने अच्छे से has presented the works which are there in his studio, और अद्वैत ने भी काफी अच्छे से इसको describe करने की कोशिश की in his interpretation, and he has discussed with Murari also. Murari ने भी अपनी चीजें बताई. So I will encourage if someone can, if anyone wants to ask anything from Murari or from Advait or in general. अगर कुछ ऐसा नहीं है तो हम स्क्रीन शेयर करके मुंबई आर्ट रूम का कुछ इमेज दिखा सकते हैं। You can even see the
that you worked on, or whatever is ready on your computer. मेरे पास सारे मतलब वीडियो दिखा दें। कितना लंबा है वीडियो? 5 मिनट्स। हाँ श्योर। फुटेज। ओके, आप हमें स्क्रीन अलाउ कर दो। नहीं, ये आपका शेयर है। हेलो। हेलो। हाँ मुरारी, हाँ, मैं रंजित बोल रहा हूँ। रंजित, एक क्वेश्चन था आपसे। आपने जो ये हट और हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट पे काम किया है, आपका बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्या है उसको लेके? उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई पार्टिकुलर वर्क के बारे में बता रहे हैं या हाउस का? मैंने अभी काफी सीरीज पोस्ट किया है। हाँ, आपने कुछ मुझे इमेजेस दिखाया था जिसमें हट के जैसा शेप बना हुआ, घर के जैसा शेप बना हुआ है, और पिछले दिनों कुछ इमेजेस मैंने आपका फेसबुक पे भी देखा था जो आपने शेयर किया था। तो इसका बेसिक मतलब मैं तो जैसे गांव भी मैंने देखा, शहर भी देखा, तो मेरे अंदर तो कुछ विजुअल सेंस डेवलप है अपने हिसाब से, लेकिन आप उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल। थैंक यू रंजित भाई फॉर दिस क्वेश्चन। मैं अभी सीरीज पूरे शेयर कर रहा था कुछ इमेज, वो एक्चुअली इसी प्रोजेक्ट से थे, जिसका कि मैंने फार फ्रॉम माई होम करके टाइटल दिया। उसके अलग अलग प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। जो मचान भी उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था जो मैंने 5 मिलियन में किया था रक्स के साथ। आपको पता होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मचान का जो स्पेस है जहाँ पे हमारा एक मीट होता है लैंडस्केप का और एक हमारा सोशल कॉन्वर्सेशन का, जहाँ पे मीट है, जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले मचान का क्या पॉलिटिक्स था। तो हम इसको बात को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मचान एक किस तरह से हमारे डिस्टेंस को दिखा रहा है। लाइक आप एक मर्ज होने का पॉइंट में, ठीक उसी तरह से घर भी आप हम लैंडस्केप और जो हमारा एक कम्युनिटी है, हमारा एक जो जगह है, स्पेस जो वहाँ पे हम होते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ये एक डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लैंडस्केप को देख रहे हैं और जो दूर में एक इमेज है, और वो एक मल्टी लेयर्ड कॉन्वर्सेशन, एक या फिर हम अपने गांव को देख रहे हैं, शहर से अपने गांव को देख रहे हैं। और तो कहने का मतलब एक डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कभी घर को देखने की कोशिश कर रहे हैं और कभी लैंडस्केप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमको लग रहा है कि वो एक मेमोरीज के बारे में भी बात करी। तो इस तरह के आइडियाज हैं को लेकर के मैं सोच रहा था। ओके, थैंक यू मुरारी। मुरारी, आपको होस्ट बना दिया गया। आई थिंक यू कैन शेयर द स्क्रीन नाउ, प्लीज चेक। मेरा स्क्रीन नहीं, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट नहीं, आप अलाउ कर नहीं मिला है अभी भी। अच्छा, आप पता नहीं, मैं जिससे भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, मैं इसी से शेयर करूँ क्या? मैं अपने फोन से ही शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं अच्छा, तुम्हारा 2 आईडी है ना, इसलिए हाँ, मैं उसको लेकर के रेडी था। अच्छा, तुम अपने से उसको कैसे करना? उसको तुम साइड से कुछ Murari, you can your other ID as host by yourself. Just click on your name, go wherever your name is. उसके ऊपर जो 3 डॉट है ना, उसके ऊपर क्लिक करो and then you can अच्छा, make मैं that. मैं खुद से होस्ट बनाऊं अपने आप को? ओके दूसरे नाम। ये हैंग हो गया क्या?
हाँ, मैं फोन का स्क्रीन शेयर कर दिया एल्बम और Murari, was this the first video that you worked on? यस यस मैंने कई परफॉर्मेंस के अभी तक डॉक्यूमेंटेशन रखे हैं लेकिन मैंने कभी इस पे काम नहीं किया How was it performing for the camera as opposed to performing to a live audience? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं बताया कि मेरा एक क्वेरी भी हो जाता है जब हम क्योंकि मैंने बताया कि जैसे कि चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना जहाँ पे लगता है कि मैं करूँ तो शायद उसकी पॉसिबिलिटीज मेरे को सरप्राइज करे क्योंकि मैं चाहे वो मीडियम कुछ भी हो जहाँ पे मैं उसके रिजल्ट से अवेयर नहीं हूँ तो मेरे लिए वो कंडीशन एक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है इसलिए मेरे लिए जब ये समय के साथ मेरे पास ये आया तो एक तरह से मीडियम का एक्सप्लोरेशन जैसा भी मेरे लिए हो गया और फिर मैंने काम किया पर हाँ ये सब टेक्निकल था उसके बाद कंसेप्चुअली मेरे को बहुत ये लगा कि मैं जब भी परफॉर्मेंस करता हूँ तो मेरा एक कॉन्शियस लेवल बहुत हाई हो जाता है और इसके बारे में कई फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे फिर उसको सेटल डाउन होने में और उसका जो एक कंडीशन होता है उसके बारे में हम कई बार बात करते हैं तो जब हम वीडियो में इस तरह से कर रहे थे और कैमरा को फॉलो कर रहे थे तो बिल्कुल अपोजिट था क्योंकि पहले उस जब लाइव परफॉर्मेंस होता ऑडियंस और कैमरा फॉलो करती थी और आपके पीछे कैमरा आपको वो फॉलो कर रही है बट आप इस वीडियो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आप कैमरा के फ्रेम को देख रहे हो आप उसके लिए परफॉर्म कर रहे हो तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो गया था कैमरा को देखने का नजरिया चेंज हो गया था और जो जो एनर्जी और जो एक कॉन्शियस लेवल हाई बोल रहे थे वो कहीं ना कहीं आप बार बार उसको कर रहे हो तो वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हो रहा था तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था इसलिए और एक तरीके से हमें यहाँ पर कई मीडिया में ट्रांसलेशन भी दिखता है जो कि आपके अभी रीसेंट बॉडी ऑफ वर्क में काफी हद तक अभी इसमें बूट्स जो दिखे थे वीडियो में वो आपने अभी अपने नए स्कल्पचर में तब्दील करे हैं और उससे पहले भी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले लो तो वो भी आपके कई सर्फेसिस पर कैनवसेस के दिखाई देता है इवन फिगरेटिवली अगर हम देखें तो जैसे घर का जो मेटाफर हुआ मैं आपको बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे पूस की याद की जो मचान था उसका भी याद दिला रहा था तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन थ्रू आउट चलता रहता है या फिर इज इट मोर कॉन्शियस फॉर यू हाउ डज इट वर्क बिल्कुल जैसे कि हम लास्ट स्टार्टिंग के कॉन्वर्सेशन में बोले थे कि मैं काम से डिस्टेंस नहीं बना पाता हूँ जल्दी मैं कंटिन्यू सोचते रहे चाहे वो वर्क हो तो वो कहीं ना कहीं बार बार वो चीजें आती है कैनवस ये बार बार अगर हो रहा है तो वो ट्रांसलेशन में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरी इंक्वायरी वहीं से ही शुरू होती है मेरा परफॉर्मेंस आने का ही पॉलिटिक्स वहीं से शुरू होता है जहाँ पे मैं एक मोनोटोनस या फिर जहाँ पे क्वेश्चन शुरू होती है तो पेंटिंग मैं कर रहा था मैं पेंटिंग से पास आउट हुआ और मैं परफॉर्मेंस में तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन जैसे जाता है
बस मेरा पर्पस ये होता है कि मैं मेरी इंक्वायरी मेरी मेरी जो लाइक जो खुद को सरप्राइज और खुद की लर्निंग कहाँ पे हो पा रही है, तो इसलिए मेरे जो है मीडियम का मेरे पास ये, मैं कभी मीडियम के बारे में नहीं सोचता हूँ। और दूसरी बात कि जहाँ तक बात है कि वो एलिमेंट्स, वो चीजें आना, वो इसलिए भी शायद क्योंकि हम जैसे कि बताएं कि हम उस थॉट से डिस्कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पाते, वो इमेजेस वो सारे एक से दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। पता नहीं मैं आपके क्वेश्चन को सही रिस्पॉन्ड कर पाया कि नहीं। नहीं बिल्कुल। और जैसे कि बताया कि कोई भी काम मेरे पास कंप्लीट नहीं मैं समझ पाता हूँ तब तक कि वो, जब तक कि निकल ना जाए एक बार, तो मैं बार बार काम करता हूँ और मैं उसके फॉर्म के साथ हमेशा, जैसे मैं बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट भी सेम चीज, सॉरी ये रिपीट हो रहा है एनीवे, तो I think impasses are very important. I'm reading this text, Depression, a Public Feeling, और उसमें भी impasses की महत्वपूर्णता के बारे में बात की गई है और बोला गया है कि जब हम एक तरीके से थॉट में स्टक हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है इधर या उधर जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं दिमाग एक ही जगह लिंगर करने लगता है और वो उसी लिंगरिंग के दौरान ही हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है इस प्रॉब्लम को समझने का। तो आई थिंक इम्पैसेस आर सुपर इम्पोर्टेंट और हमने आज के कॉन्वर्जेशन की शुरुआत भी वहीं से की थी और हम खत्म वहीं पर करने जा रहे हैं कि आपकी काम में भी इम्पैसेस की क्या महत्वपूर्णता रहती है और किस तरीके से आप अपनी इंक्वायरी वहीं से शुरू करते हो जहाँ पर थॉट स्टक हो जाता है और वो जो मोनोटोनस एक्शन जो रिपीट करता रहता है या फिर जो थॉट जहाँ पर जाके अटकने लगता है, वहां से फिर आप अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस को आप अपना लीड लेने ले। थोड़ी देर left. Yeah, so I think it's going to end now. Thank you all for joining. And I don't have a question, but I just want to mention that I also had a conversation with Murari some time back, और उसने मुझे ये सारी अपनी चीजें and Murari always speak about the objects and the body as a separate thing. Like he tells, my objects are a part of the thing, and body is also there in my work. And he also told me about the extreme conditions also of the things he talks about. But this discussion has really helped me to link the sexuality part that you brought in, Advait. I really like that because I can see that in his works, but he never told me that this is there. So the whole link that you all brought in and you have spoken together really helped to understand the whole the whole process. And maybe Murari is also not very consciously doing that. Because of that he never speaks about the sensuality things, but that is very much evident in his work, like one can see. So anyways, it was very nice discussion and we really enjoyed it and we really liked, and everything went on very smoothly. And so thank you all. Thank you, Advait, for your time, and thank you, Murari. And it was really good. And thank you all for joining today. Thank And hope next Sunday we can be back with some other artist. We will let you know. Yes. Thank you so much, Purnamita, and thank you so much, Advait. आपके साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा मेरे बहुत सारे एरर ये करते हैं और आई मीन मैं हमेशा एक नए डायरेक्शन में पहुंचता हूँ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सच अ वंडरफुल लाइक टाइम. Thank you so much. Yeah. All mine. Thank you, everybody. It was really Thank nice. you, guys. Thank you. So Thank you, everyone. Yeah. Bye. Stay safe. Thank you. Take care. Bye bye. Okay.